Assalamu alaikum students, this is your Miss Mamuna. Today we will start our Excel worksheet. ठीक है? First we will download the Excel, Microsoft Excel from the Play Store on your mobile. ठीक है? Here is the Play Store and there you can write MS Excel and you can download from here. Everybody knows about it. ठीक है? Okay. When we will download the Excel, I can come over here and we just click on it. ठीक है ना? This software will be open in your mobile and you can see that in the top right hand side there is a plus sign. You just click this plus sign and you enter in the first window of the Excel. ठीक है? Here is the blank worksheet. Take a tour and make a list, take a total a list or something like that, but we are not going down there. These are all tutorials, you can also visit them, but we will first click the blank worksheet over here. ठीक है? It's working and it's open now. This is the first worksheet that we see in the Excel, and it displays some very difficult and very critical sort of page that is not understandable. There are cells over here. You can see that my mouse is moving, and with the click of my hand, with the movement of my hand, the mouse is moving everywhere. ठीक है? Number 2, this is the first thing, that these blocks are called cells in Excel. ठीक है? What are cells? Cells are the blocks in the Excel sheet. It shows the position of the data. ठीक है? Number 2, there are some rows and columns. You can see the rows. I am clicking and it shows the double line, green line over here on the screen. ठीक है? These are all rows. You can see this is 1, this is 2 row, this is 3 row, this is 4 row, this is 5 row, and so on. It goes on. If we just scroll down, it goes on up to so many. There are so many rows. ठीक है ना? rows. So रोज़ जो हैं ये आपको बताती हैं कि ये कौन सी लाइन चल रही है. ठीक है ना? जैसे उर्दू में हमारी लाइंस होती हैं, हम लाइंस के ऊपर लिखते हैं उर्दू की कॉपी में, तो आप उर्दू की लाइंस को आप रो कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें बहुत इजीली आपको पता चलेगा कि ओके हम इस लाइन पे लिख रहे हैं. ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ है हमारे पास ये A B C D. यू कैन सी दैट देयर आर A B C D E F columns. These are called columns. The columns are upside down. ठीक है ना? You can see that they are also going upside down. ठीक है ना? Rows are from left to right. ठीक है? And the columns are upside down. ठीक है? रोज जो हैं ये आपकी ये चल रही हैं और जो कॉलम्स हैं वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं. ठीक है? 3 चीज़ें हमने देखी. नंबर 1, हमारा जो सेल होता है ये सेल है. ठीक है ना? हम वर्कशीट के ऊपर कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो ये हमें सेल की पोजीशन बताता है. फिर 2 चीज़ें हमने और पता की कि एक चीज़ होती है रो, जो कि एक उर्दू की लाइन की तरह होती है. ठीक है? ये देखें उर्दू की लाइन की तरह चल रही है और जिसमें हम कहीं पे भी लिख सकते हैं. ठीक है? दूसरी चीज़ होती है कॉलम. कॉलम क्या होता है कि ये आपको बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे आपकी ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइंस खींच दी गई हैं, जैसे मैथ की लाइंस होती हैं. ठीक है? ओके, देयर इज़ द very important thing that I want to show you. Here is the fx sign. This fx sign is the formula bar. This is called formula bar. ठीक है? फॉर्मूला बार क्या होता है कि फॉर्मूला बार में आप कोई भी लेटर लिखे, जैसे मैंने फॉर्मूला बार में फॉर्मूला बार लिखा, तो मेरा कर्सर जहाँ पे भी होगा इट विल राइट फॉर्मूला बार ओवर हेयर. ठीक है? अगर मैं अपने कर्सर को कहीं पे भी ले जाती हूँ किसी भी पोजीशन पे, ये देखें ये जब मैं इसको यहाँ पे लेकर आती हूँ तो ये मुझे शो कर रहा है, ये जो 2 लाइनें शो कर रही हैं. ठीक है ना? 4B. यू कैन सी दैट 4 रो में और 5B कॉलम में. ठीक है ना? मैं 4 रो में B कॉलम में हूँ, 5 रो में B कॉलम में हूँ, 6 रो B कॉलम में हूँ, 7 रो B कॉलम में. इसी तरीके से मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ से ये 10 रो है. ठीक है? और E कॉलम है. ठीक है ना? इस फॉर्मूला बार का जो एड्रेस है वो क्या है, 10 रो है एंड E कॉलम है. ठीक है?
तो अगर मैं अपना कहीं पे भी कर्सर को रखती हूँ तो ये एक्चुअली ये जो शेडेड लाइंस हैं, शेडेड कॉलम्स जो हैं या शेडेड रोज जो हैं, ये मुझे बताती हैं कि वेयर आई एम स्टैंडिंग इन द वर्कशीट। ठीक है ना। ये 11, 12, 13 ये जो भी बता रहा है ये बी कॉलम का 11, 12, 13 बता रहा है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं डी कॉलम में हूँ तो डी कॉलम में 7, 11, 16 बता रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं कहीं पे भी जाती हूँ एंड देन आई राइट इन द, हमें जस्ट क्या करना होता है, डबल क्लिक कर लें या वन टाइम क्लिक करेंगे आप। ठीक है ना। वन टाइम जब क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट का। ठीक है। एडिट जब आप करेंगे तो आपका कर्सर इस पोजीशन पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि बी कॉलम में रो नंबर 5 पर। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने नंबर्स टाइप कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। मैंने जैसे ही ये नंबर टाइप किया, यू कैन सी दैट देयर कम्स अ नंबर इन द फॉर्मूला बार ओवर हेयर। ठीक है। एंड व्हेन आई से एंटर इट सेव इन द सेल। ठीक है ना। अब मैं आपको ये बता सकती हूँ इन द बी कॉलम रो नंबर 5 आई हैड राइट 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। सो ऑन। अगर मैं किसी और कॉलम को लेती हूँ, द एड्रेस ऑफ द सेल, the address of the cell is very important as when we will locate our data in the formula sheet, in the excel sheet. So address of a cell is very important because of that address we can locate our data. ठीक है। एड्रेस ऑफ द सेल हमें पता होगा तो हम लोकेट करेंगे अपने डाटा को, लेकिन एड्रेस ऑफ सेल क्या है? एड्रेस ऑफ सेल ये है कि रो नंबर क्या है हमारा और कॉलम नंबर क्या है। ठीक है। यू कैन सी ओवर हेयर हमारे पास कॉलम नंबर सी में रो नंबर 7 पर। ठीक है ना। जब हम कॉलम नंबर सी लेंगे तो हम कॉलम सी में आ जाएंगे। ठीक है। और जब मैं कहूँगी रो नंबर 7 पे तो मैं 7 पर आ जाऊँगी। ठीक है। 7 पर आगे मैंने लिखा मैमूना, माई नेम इज़ मैमूना, सो आई एम राइटिंग माई नेम ओवर हेयर। जैसे ही मैंने मैमूना लिखा, द FX फॉर्मूला बार शोज मी द नेम। I hope you understand the basic concept of Excel sheet. It's a little introduction, and hopefully you understand it. If you don't understand, please comment me and ask questions so I will improve my lectures. Thank you very much.